more sustainable future. Today is a day for education, advocacy, and action. A day to demonstrate our commitment to environmental stewardship. The greatest threat to our planet is the belief that someone else will save it. And today, we are honored to have that someone amongst us, Dr. Rajendra Singh Sir, also prominently known as the Waterman of India, who is on his toes to save the earth for us. Thank you for being a part of our program Spotlight and for your dedication to safeguard our planet. Welcome once again, and let's work together to make a positive difference. As light expels darkness, a solemn prayer casts away our fears, calms our soul, and fills us with strength and positivity. May I invite our Honorable Principal Ma'am to offer a tree garden to our distinguished guests. We are honored to have with us today the Waterman of India, Dr. Rajendra Singh Sir. Dr. Singh is a renowned person, social activist and environmentalist who has dedicated his entire life for the greater good. Dr. Singh's journey is a relentless pursuit of sustainable solutions to address the critical issue of water scarcity. Dr. Singh has been awarded the most prestigious international awards like the Stockholm Water Prize, an award known as the Nobel Prize for Water in 2015, and the Ramon Magsaysay Award in 2001 for community leadership. Besides, Dr. Singh has also been bestowed with several international and national accolades like the Ahimsa Award, the prestigious Earth Award from the US, Indira Gandhi Paryavaran Puraskar, Jamnalal Bajaj Award for application of science and technology for rural development in 2005, Bharat Asmita Rashtra Award, the Chilpuri Award 2022 for water conservation, environment promotion and social work, the Samaj Bhushan Award in 2024 and the Lifetime Achievement Award by ZDW. The Guardian named him in the list of 50 people who could save the planet. Sir is the founder and president of Tarun Bharat Sangh, an organization he founded in 1975. Tarun Bharat Sangh has been instrumental in empowering communities and spearheading watershed development projects. Through its initiatives, over 14,800 water structures have been constructed, transforming more than 1,500 villages into water-secure communities. आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सकें, आप बड़े बन सकें, आप इस दुनिया की एक बड़ी पर्सनैलिटी बन सकें, आप एक बड़े अफसर बन सकें, सब कुछ चाहते हैं। और साथ में तुम्हारे शिक्षक भी यही चाहते हैं। माँ बाप और शिक्षक दोनों चाहते हैं कि हमारे बच्चे कुछ बड़े बन जाएं। पर ये दोनों कभी कॉमन फ्यूचर को बेहतर बनाने के सपने नहीं दिखाते। कॉमन फ्यूचर को बेहतर बनाने के सपने दिखाने की जरूरत है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि शिक्षा हमारी लाइफ को डिसइंटीग्रेट कर रही है। जब हम भगवान कहते हैं तो ये भगवान कहाँ रहता है? तुमने देखा कभी भगवान को? कौन है ये?
वैदिक काल तक भगवान भय से भूमि, गै से गगन, वै से वायु, और से अग्नि और नय से नीर, ये जो पंच महाभूत थे ये हमारा भगवान था। और ये भगवान किसी मंदिर में किसी पुजारी की चाबी में बंद नहीं रहता था। इस भगवान को कोई पुजारी बंद नहीं कर सकता अपने मंदिर में। ये भगवान हम सबके साथ रहता है। इसलिए हमें अपने फ्यूचर को इस भगवान के साथ जोड़ के देखना है। हमें हमारी शिक्षा को इन पंच महाभूतों के साथ इंटीग्रेट करने की जरूरत है। और ये इंटीग्रेशन डिसइंटीग्रेशन में क्यों बदल गया? क्योंकि हमारी शिक्षा में हम कैसे बने हैं, हमारी लाइफ में इन 5 एलिमेंट का रोल क्या है, हमारी धरती का, हमारी मिट्टी का, हमारे पानी का, हमारी हवा का, हमारे सूरज का, हमारे स्पेस का, हमारी लाइफ में क्या रोल है, उसके लिए तुम्हारी पाठ्य पुस्तक में कोई चैप्टर नहीं है। कि जिस देश में तुम रहते हो वो देश इस दुनिया का गुरु कैसे था, कि तुम इस दुनिया को क्या गुरु बनाना चाहते हो कि नहीं बनाना चाहते। तो मैं बस आपको, यदि दुनिया का गुरु बनना चाहते हो तो फिर भारतीय ज्ञान तंत्र में, इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम में और इंडियन विजडम में वो क्या खास बात थी जिसके कारण भारत दुनिया का गुरु था, और वो खास बात कब तक जिंदा रही और अब वो बात क्यों मर गई, ये दोनों बात समझनी है आज। तो मैं योग वदे तम नो भूमे रंध्य पूर्व पृथ्वी। विद्या में एक शब्द है अविद्या। लिखा है कि जीवन को चलाने के लिए अविद्या की जरूरत होती है। जीवन विद्या से नहीं चलता है, जीवन को चलाने के लिए अविद्या चाहिए। और अविद्या में लाइवलीहुड एंड लाइफ बस दो ही चीज है, डिग्निटी नहीं है उसमें, डिग्निटी विद्या में है। अप्रमादम चरंती साना भूमि भूरिधारा पयो धुया मतो उक्षतो वज्रसा। जो भी जलधाराएं हैं उनको बहने दो, शर्यंती, उनको बहने दो, उनको मत रोको। और वहीं आगे कहते हैं वो कि बादलों से निकली हर बूंद को पकड़ लो। बादल तुम्हारे जीवन को चलाने के लिए जल लेकर आए हैं और वो जल तुम्हारे जीवन के लिए है। उसको पकड़ लो, उसको सहेज लो, उसका संरक्षण कर लो और उस जल से अपना जीवन चलाओ। लेकिन नदी को मत छेड़ो, जलधाराओं को मत अपराध, उसके साथ अवसाद मत करो, उसके साथ अवरोध मत करो। उसको अपनी आजादी से, अपनी स्वतंत्रता से बहने दो। जरा कोई बताएगा ये इतनी द्वंद्वात्मक बात हमारे अथर्ववेद में क्यों कही है? नहीं बताया। तो आज हम इन पांचों से मिलेंगे। आज का दिन इस भगवान से मिलने का दिन है। भे गे वे और ने भगवान, बताओ इनसे मिलना चाहते हो कि नहीं? ब्रह्मास्मि अपमन जल, जल बोल रहा है कि मैं ही ब्रह्मा हूं और मैं ही ब्रह्मांड को बनाता हूं और मैं ही ब्रह्मांड को चलाता हूं। कितनी बड़ी बात कह रहा है। वाटर स्केर्सिटी और वाटर क्राइसिस फेस कर रहा है। आज 190 जिले बाढ़ आती है। अब राजस्थान में भी बाढ़ आने लगी। आजादी के वक्त भारत का नाम राजस्थान का नाम बाढ़ की लिस्ट में नहीं था। अभी राजस्थान में भी, बाड़मेर में भी बाढ़ आने लगी है। अब ये एक्सट्रैक्शन क्यों बढ़ी? ये एक्सट्रैक्शन इसलिए बढ़ी कि हमने साइंस और टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग को डिसइंटीग्रेट कर दिया। मेरा टीचर अनपढ़ था, टीचर नहीं मेरा गुरु,
मेरा गुरु अनपढ़ था, इसलिए उसने उसको डिसइंटीग्रेट नहीं किया था। उसने सबसे पहले मुझे जियो हाइड्रो साइंस में 1 दिन में मेरी पीएचडी कंप्लीट की। मुझे चमड़े के चरस में बैठा के नीचे 150 फीट गहरे कुएं में जो सूखा हुआ था उसमें डाल दिया और 5 मिनट के बाद निकाल के पूछा, अरे तेने कुएं में काहे देखा रहे? तो मैंने कहा, काका इस कुएं में तो ऊपर से नीचे सीधी सड़क है। ये लाइन देख रहे हो तुम इस दीवार में, ये क्या है? ये कन्फाइंड वर्टिकल, क्या है? कन्फाइंड वर्टिकल लाइंस हैं। ऐसी ही लाइंस धरती के पेट में जहां हार्ड रॉक्स होती हैं वहां पर होती हैं, और जहां ऐसी लाइन होती है धरती में वहां पेड़ों की जड़ें उन फ्रैक्चर्स में नीचे तक चली जाती हैं और वो पानी लेती रहती हैं, इसलिए उन पेड़ों पर पत्तियां कभी सूखती नहीं है। जहां पर कन्फाइंड वर्टिकल फ्रैक्चर होते हैं वहां के पेड़ हमेशा हरे रहते हैं और उनमें कांटे नहीं होते, और जहां पर अनकन्फाइंड हॉरिजॉन्टल फ्रैक्चर होते हैं, देखिए ये जो है ये कन्फाइंड वर्टिकल फ्रैक्चर्स हैं, ये जो है ये कन्फाइंड वर्टिकल फ्रैक्चर्स हैं, और ये डैम नंबर 2 के नीचे मिक्स फ्रैक्चर है जहां पर वर्टिकल भी है और हॉरिजॉन्टल भी है। तो जहां पर वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों तरह के फ्रैक्चर्स होते हैं वो मिक्स फ्रैक्चर है, और जहां पर सीधे कन्फाइंड वर्टिकल है, तो जहां पर कन्फाइंड वर्टिकल फ्रैक्चर होते हैं वहां के पेड़ हरे होते हैं। तो उसने मुझे 1 दिन में 25 कुएं दिखाए। तो मेरी पीएचडी का वैलिडेशन 25 कुओं, मेरा वैलिडेशन एक अनपढ़ किसान ने 20 और किसानों को बुला के 25 कुएं दिखा के किया कि अब तू पेट समझ गया है धरती का, और अब तू धरती के पेट को पानी से भर सकता है। और दूसरे दिन उसने ऊपर पहाड़ी पर ले गया जहां से नदी शुरू होती थी, और नदी के साथ चलते चलते जहां पर देख रहे हो तुम, ये स्लाइड देख रहे हो, ये जो नदी जब सूखी थी जब मैंने काम शुरू किया, और उस नदी के ऊपर ले गए, और जहां जहां नदी में स्टीप स्लोप थे वहां कॉन्वेक्स डिजाइन के डैम बनाने को कहा ऐसे, और जहां जेंटल स्लोप थे वहां सीधे डैम बनाने को कहा, और जहां नेचुरल डिप्रेशन था वहां कॉन्केव डिजाइन के डैम बनाने को कहा। केवल ये जो इंजीनियरिंग थी, ये इंजीनियरिंग नेचुरल इंजीनियरिंग थी, बट इस इंजीनियरिंग में एक कॉन्शियसनेस थी वहां के लोगों की, और कंसर्न था विद नेचर। नेचर का कंसर्न था कि हम नेचर में कुछ भी डिस्प्लेस डिस्ट्रक्शन ना करें। विदाउट डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्ट्रक्शन कैसे हम अपनी नेचर को रिजोनेट कर सकते हैं, ये चैलेंज था। इसलिए दूसरे दिन जो मेरी पीएचडी थी वो थी इंजीनियरिंग में, जहां मुझे साइट सिलेक्शन, डैम का डिजाइन, कंपैक्शन, एग्जीक्यूशन 1 दिन में 17 किलोमीटर पैदल नदी के साथ चल के सिखा दिया। तुम्हारे टीचर कभी आओ नदी को जाने ये सिखाने की कोशिश की? हमने अभी तक 14,800 डैम बनाए और हजार छोटे छोटे जगह बनाए, उसको घर से बाहर। अब हमारी 23 सूखी मरी हुई नदियां आज की तारीख में शुद्ध सदा मेरा होकर बह रही है। जरा सोचो कि जिस जैसलमेर में कुल साल भर के अंदर कितनी बारिश होती है? 6 इंच की बारिश में 1500 ऊंटों को और 2000 व्यापारियों को पानी पिलाने का कौन सा विज्ञान था, कौन सी तकनीक थी, कौन सी इंजीनियरिंग थी, कौन सी रेल और हवाई जहाज था जो जैसलमेर पानी ले जाता था? जरा बताओ। कैसे जैसलमेर एक पानीदार जगह थी, उस जैसलमेर में हजारों ऊंट, सैकड़ों व्यापारियों को रोजाना उस रास्ते से गुजरना था, उनको कैसे पानी मिलता था? उस जमाने की इंजीनियरिंग जिनको हम सोना कहते हैं, वो जो बनाने वाले थे सोनागर, वो ये जानते थे कि जैसलमेर में 3 साल का अकाल होता है, उसको त्रिकाल कहते हैं। 1 साल बारिश हुई 3 साल नहीं होती। तो उन्होंने पानी की इंजीनियरिंग वैसी बनाई थी
कि 3 साल भी यदि बारिश ना हो तो भारत का व्यापार खतरे में ना आए। तो उन्होंने क्या किया था? देखो एक हाथी दिख रहा है इसमें नीचे। जिस दिन ये हाथी डूबता था उस दिन यहाँ का राजा, यहाँ के महाजन और यहाँ की प्रजा इस पाल पर इकट्ठे होकर कहते थे, गढ़सी सर का हाथी डूब गया, अब हमारे पास 1 साल का पानी आ गया। हाथी डूबता है तो 1 साल का पानी आता है। फिर घोड़े के पैरों में जब पानी आता है तो कहते हैं घोड़े के पैरों में पानी आ गया, हमारे पास 2 साल का पानी आ गया। फिर घोड़ा डूबता है तो कहते हैं अब त्रिकाल का पानी आ गया। त्रिकाल 3 साल का काल यदि आएगा तो भी हमारे पास पानी रहेगा। तो ये जो पानी था ये कैसे रहता था? अब तुम्हारे नल में बाथरूम में पानी आता है, सुबह जब मुंह धोते हो, दांत धोते हो, खुला छोड़ देते हो, ऐसे नहीं होता था। एक आदमी को 5 लोटा पानी, तब लीटर नहीं था, क्या लोटा था, लोटा। ये इंतजाम हमारे अनपढ़ सोनागर, हमारे अनपढ़ गांव के लोग, हमारे अनपढ़ युवा लोग करते थे। कि तब हमारे पास शिक्षा नहीं थी, तब भी हम अपना मैनेजमेंट करते थे और हम गौरव से कहते हैं कि हम पानीदार थे, हम इज्जतदार थे, हम समझदार थे और पानीदार थे और मालदार भी थे। हम लोग ये जो जितनी भी साइट सिलेक्शन है और कंस्ट्रक्शन है और क्रिएशन है, ये सब लोकल कम्युनिटी ड्रिवन डिसेंट्रलाइज्ड वाटर मैनेजमेंट से ये काम हुआ है। इसलिए इस काम के लिए मुझे कभी भारत सरकार के पास, कभी राजस्थान सरकार के पास और कभी किसी जिले की सरकार के पास पैसा लेने नहीं जाना पड़ा। मैंने कभी किसी सरकार से आज तक अपने 50 साल के सामाजिक जीवन में एक पैसा नहीं लिया। इसलिए ये सारी साइट सिलेक्शन कम्युनिटी ड्रिवन है। उस काम को करने के लिए हमने जिन गांव में पुराने तालाब खराब हो गए थे, उन पुराने तालाबों को पुराने लोगों ने कैसे बनाया था उसको जानने का बूढ़े लोगों को सबको लगाया। तो सबके पीछे निकल के आया कि किसी महाजन का थोड़ा पैसा उसमें लगा था। तो हमने कहा भाई वो महाजन अब कहाँ चले गए, उनको ढूंढो। तो कोई दिल्ली चला गया, कोई बंबई, कोई बेंगलोर, कोई कानपुर, कोई कहीं कहीं सब चले गए थे। तो हमने ढूंढ कर उनको कहा कि तुम्हारे दादा ने इतने साल पहले ये तालाब बनाया था, अब हम उस तालाब को बनाना चाहते हैं। हमने ये नहीं कहा हमें पैसा दे दो, हमने कभी नहीं मांगा पैसा, हम कहते बनाना चाहते हैं तो तुम इजाजत दो तो हम बना ले। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, आप मेरे दादा के पास तो जब कुछ नहीं था जब ये तालाब बना, अब तो हमारे पास बहुत कुछ है, तो हम ही बनवा देंगे। तो वो लोग आए और फिर उन्होंने, उनके पुरखों ने तो किसी ने 1 तालाब बनाया था, फिर तो कोई 11 तालाब बनवा रहा है, कोई 21 तालाब बनवा रहा है, कोई 51 तालाब बनवा रहा है। तो हमें कभी पैसे का संकट नहीं हुआ। देखो इसको यदि 1 रुपया देंगे तो ये 1.5 रुपये का काम कर देगा। तो उस विश्वास से, फिर उस विश्वास के बाद ट्रस्ट होता है, फिर उस ट्रस्ट के बाद श्रद्धा होती है। और यार देखो यार इसने क्या गजब का काम किया है, चलो हम भी उस काम में कुछ हाथ लगा दें, उस काम में हम भी कुछ मदद कर दें, तो फिर श्रद्धा आ जाती है। तो ये जो काम है ये प्यार से शुरू हुआ और अब श्रद्धा तक पहुंच गया है। वो ओपन वेल है, वो ट्यूबवेल है, वो बोरवेल है, वो सबमर्सिबल है, उनको रिचार्ज किया और इन 2.5 लाख वाटर बॉडीज जो रिचार्ज हुई, उन्होंने 12.5 लाख युवाओं को रोजगार दिया। जब हम डिस्चार्ज करते रहते हैं तो वहां के जल स्रोत सूख जाते हैं, और जब हम रिचार्ज करते हैं तो हमारे गांव का एक विज्ञान है। क्या विज्ञान है? बादल तो आते हैं हर साल, बरसते हैं जमीन पर। जब बादल बरसते हैं तो पानी दौड़कर चलता है, और जब पानी दौड़कर चलता है तो उसको रेंगना सिखा दो। जब पानी रेंगने लगे तो उसे पकड़ के धरती में बैठा दो। देखो मेरी उंगली के सामने वो बैठ रहा है कि नहीं? जब वो पानी धरती में बैठने लगेगा तो कुओं में और नदी में पानी बहने लगेगा। रॉकेट साइंस, द रिजुविनेशन ऑफ द रिवर इज अ वेरी सिंपल नेचुरल साइंस।
जो 25 जनवरी 1985 में नदी सूख गई थी, मर गई थी, क्योंकि पहाड़ियां नंगी थी। बारिश के दिनों में सारा पानी बह के चला जाता था, मिट्टी को, पत्थर को साथ में लेकर। 15 साल में जो संरक्षण का काम हुआ, उसके साथ पहाड़ियां हरी हो गई। वही पहाड़ी है, देख लो जरा ध्यान से। वेरी गुड। ये कोई मेरिकल नहीं किया, बहुत सिंपल काम है। बारिश में बाढ़ आती है ना तुम्हारे जयपुर में, देखिए तुमने जयपुर की बाढ़, बहता है ना सड़कों पर पानी, तो हमने वो पानी सड़कों पर ना बहे, वो पानी बहकर नीचे ना जाए, जहां वो वर्षा है वहीं उसको चलना सिखा दिया और फिर धरती के पेट में रेंगना सिखा दिया। बस इतना काम किया। तुम्हारी शिक्षा विद्या के सिर पे बैठी है, जबकि विद्या को शिक्षा के सिर पर बैठना चाहिए। विद्या, बोलो, विद्या ऊपर आनी चाहिए कि शिक्षा? विद्या। वेरी गुड, थैंक यू। नेक्स्ट। तो दोस्तों, ये जो है मानू काका, इसने मुझे पानी का काम सिखाया और इनसे सीख के आज दुनिया को, जब किसी दुनिया में एक कमीशन बनाया अभी ड्राउट एंड फ्लड के लिए, उस कमीशन का चेयरमैन इनके चेले को बनाया। जरा देखो जल्दी से। तो देखो, जब हमने काम शुरू किया था तब क्या गीत था? तब बादल तो आते हैं हर साल मेरे गांव में, बादल तो आते हैं हर साल मेरे गांव में, पर बरसते नहीं है वो, रूठ कर चले जाते हैं कहां हम नहीं जानते। जिस दिन से बादलों ने रूठना शुरू किया, मेरा बेटा और मेरे बेटे की बहू भी मुझसे रूठ कर दिल्ली चले गए। मेरे कुएं में पानी नहीं, मेरे खेत में हरियाली नहीं, मेरा बुढ़ापा कैसे गुजरेगा मुझे मालूम नहीं। जो पानी आने से पहले पाल बांध लेता है वो कभी भी पानी नहीं होता। पानी तो आएगा, बारिश तो आएगी, पर बारिश आने से पहले हम तैयारी कर लें कि बारिश के पानी को रोक सके। तो हमने एक बड़ी ड्राइव, ये जो बेरोजगार हुए थे, खानों के मजदूर और जो लोग थे गांव के, उन सबको लगा के ऊपर से नीचे तक बांध, जोहर, तालाब बनाए। और फिर हमारे यहाँ सरिस्का का एक हरा जंगल है, उस जंगल में थोड़ी बारिश होती थी। उस बारिश के पानी को रोककर हमने अपनी वाटर बॉडीज में डाइवर्ट कर लिया। तो मैं केवल 10% वाटर बॉडीज को भर सका शुरू के साल में, पहले साल में, लेकिन 10% वाटर बॉडीज ने अंडरग्राउंड एक्वीफर को रिचार्ज किया और रिचार्ज करने से खेती होनी शुरू हुई। और फिर जैसे ही खेती होनी शुरू हुई तो देखो क्या हुआ। हमारी वाटर बॉडीज का एवोपरेशन और हरियाली का ट्रांस एवोपरेशन, दोनों बादल, माइक्रो क्लाउड्स, छोटे बादल बनाने लगे। और इन छोटे बादलों ने अरेबियन सी से आने वाले बड़े बादलों को बुलाया और दोनों मिल गए। अब क्या होगा? अब क्या होगा? क्या होगा? ज्यादा बारिश होगी। तो जरा देखो, बारिश होने लगी। गुड, वेरी गुड। नहीं है वो, बरसते हैं मेरे खेतों पर, पानी आ गया है मेरे कुएं में। जिस दिन पानी आया मेरे कुएं में, मेरा बेटा और मेरे बेटे की बहू और मेरी पोती लौट आए हैं घर। अब वो करते हैं खेती। मेरे खेत में है पानी, मेरे कुएं में है पानी, मेरे खेत में है हरियाली। अब मुझे मालूम है कि मेरे बुढ़ापे में रहेगी खुशहाली।
वेजिटेशन है वो बड़ी है, मतलब बेसिकली फॉरेस्ट कवर हुआ है, जिससे कि इट इज आल्सो इंक्रीजिंग एंड ग्राउंड वाटर रिचार्जेस दिस। बस इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। Rajendra sir said about all the environmental ecology, it's just so good to know about all the interrelation between them. One thing results in another. When the groundwater increases, the vegetation increases, and in the songs it depicted another meaning too, kind of benefit for the whole humankind. The knowledge he gave us, it was very, very knowledgeable. It was very, very nice to see that in 1985 the whole river was dried up, and the same river in 2000 it was very, very, it was green, the mountains were back and the river was back. It was very, very I was very happy to see that it was that it replenished, and everything that he has done for the environment is very, very good to see that somebody from our society is doing so much for the future and the next generations. Yes, I would definitely take a step forward, because if we blame each other that you do it and you do it, we have to take a step ourselves. There is a saying, think globally, act locally. So I would really like to take a step towards it. We learned that how water can be saved and many things. So it's the same thing that I cannot bring those things to the words, I cannot convert them, I cannot express how good it was, and I've really learned a lot from that, and I'm really inspired with that, and really it was really nice. First of all, like to thank Vidyashram School for conducting such an informative session under the mentorship of Sir Rajendra Singh and Ma'am Sudipti Arora. It has given us a very good platform for increasing our knowledge and gave us a very good career options in future. It gave us the idea that what is the real scenarios of today's earth, and it is now, we have understood that it is now a responsibility to look after our mother earth, and I'm definitely going to go back to my school and aware my classmates and all the school students about this, so that we can take a step as soon as possible. That they had made a tank outside the school to save the water in the water bottles which is left out, because children, since they are a bit naive, they tend to drop the water out of the classes, etc. So it gets wasted like that. So just to create a bit more awareness and to save water even on a very small scale without the least investment, they would save water in those tanks and rejuvenate it into the trees around that area, so that it would just get recycled.